Good morning, students. Myself Rohit Jangra, and I am working as a PGT Geography in Suru School Rewari. And today we discuss about the mineral and energy resource. This is a chapter of class 10th, fifth chapter, Geography. Actually, in this chapter we just discuss about the minerals as well as energy resources, and I just talk that energy resources is very important for us as well as minerals. We use different thing in our daily life made from the metals. Can you list a number of items used in your house made of metals? Where do these metals come from? Okay, you have studied that the earth crust is made up of different minerals and embedded in the rocks. Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. Minerals are an independable part of our life. Almost everything we use, from a teeny pin to a tower building or a big ship, all are made from the minerals. The railway lines and the tremendous paving of the roads or implement and machinery too are made from the minerals. Car, buses, trains, aeroplanes are manufactured from the minerals and run or power resource derived from the earth. Even the food that we eat contain minerals. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decorations, festivities, religious and सेरेमनियल राइट्स. ओके, सो जैसा कि ये बात कर रहा है, आपसे कह रहा है कि हम छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ के अंदर आपका मिनरल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. और रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिनको हम अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे आपके रिसोर्सेज कहलाते हैं. वैसे जिमरमन ने एक डेफिनेशन दी थी रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे आर बिकेम. रिसोर्सेज होते नहीं हैं बल्कि वो बनाए जाते हैं. ठीक है. तो आप अपनी नीड्स के हिसाब से किसी का यूज़ करते हो, वो आपके मिनरल्स हैं, और वो आपके मिनरल्स हैं और उनको आपने रिसोर्सेज बना लिया है. ठीक है. आफ्टर दैट, व्हाट इज़ मिनरल? देखो, एक डेफिनेशन है मिनरल की. Geologists define minerals as a homogeneous, naturally occurring substance with the definable internal structure. Minerals are found in various forms in nature, ranging from hardest diamond to softest talc. Why are they वेरिड? ठीक है. अब बात यह है कि एक हीरे जितनी जो बिल्कुल हार्ड चीज़ है वो, और एक टॉक जितनी आपकी बिल्कुल जो सॉफ्ट चीज़ है वो, ये दोनों ही आपके मिनरल के अंदर आते हैं, और ये नेचुरली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. ठीक है. जो आपको नेचर के अंदर मिलता है. आफ्टर दैट, यू हैव ऑलरेडी लर्न about rocks. Rocks are combination of homogeneous substance called minerals. Some rocks, for the instance limestone, consist of single material only, but majority of rocks consist several minerals in having proportion. Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks. ठीक है. करीबन 2000 से ज़्यादा आपके मिनरल्स हैं, और करीबन उनमें से कुछ हैं जो हर तरह की रॉक्स के अंदर या हर जगह आपको मिल जाते हैं. ए पर्टिकुलर mineral that will be found from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical conditions under which the material forms. This is turn result is a wide range of color, hardness, crystal form, luster and density that a particular mineral process. Geologists यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़ टू क्लासीफाई द मिनरल्स. ठीक है. ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं जितने भी मिनरल्स है, चाहे लस्टर हो, चाहे आपका उसकी हार्डनेस हो. ठीक है. उसका क्रिस्टल फॉर्म हो, उसकी डेंसिटी हो, और इसी बेसिस पे आपके सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है या उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. उसके बाद है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स. वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड? ये मिनरल्स आपके मिलते कहाँ हैं? ठीक है. सबसे पहले है मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स. ठीक है. ये और की फॉर्म में मिलते हैं. इट मीन्स नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म. द टर्म
or is used to describe the accumulation of any minerals mixed with other elements. The minerals content of ore must be in sufficient concentration to make its exertion commercially viable. The type of formation or structure in which they are found determine the relative ease with which minerals ore may be mined. This also determines the cost of the extractions. It is therefore important for us to understand the main type of formation in which minerals occurs. ठीक है, आप मिनरल्स की कीमत जो है वो भी बहुत कुछ डिपेंड करती है कि आप उस मिनरल्स को निकालें या ना निकालें। दूसरा, उसकी यूज़ आपके लिए कितना यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, अब मान लिया कि कोई ऐसा मिनरल है जिसके लिए आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है, बट वो मिनरल यू कांट यूज़ प्रॉपरली, और मैं ये कहूँ कि इतना यूज़ नहीं होता वो आपके लिए जितने अदर जो मिनरल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर्स इन द क्रैक्स fault or joints. The small occurrence are called veins and the large are called iodes. यहाँ पे ये वेन और आयोड का एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, द स्मॉलर ऑकरेंस जो छोटा या थोड़ा या स्मॉल क्रैक होता है उसमें जो आपके मिनरल्स होते हैं वो आपके वेन्स कहलाते हैं, एंड द लार्जर आर कॉल्ड आयोड्स. इन मोस्ट केसेस दे आर फाउंड when minerals is liquid, molten and gaseous forms are forced upward through the cavities towards the earth's surface. They cool and solidify as they rise. Major metallic minerals like tin, copper, zinc and lead etc. are obtained from the veins and iodes. ये एग्जाम्पल हैं जो आपके वेन्स और आयोड्स से मिलते हैं. उसके बाद है इन सेडिमेंट्री रॉक्स द नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर्स इन बेड्स और लेयर्स. ठीक है, यहाँ पे ये वहाँ पे क्रैक्स के अंदर थे, यहाँ पे लेयर्स के अंदर मिलेंगे, जो पैरेलल लेयर्स हैं अर्थ की उसके अंदर. दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, अकोमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजेंटल स्ट्रेटा. कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन or have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure. Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash salt and sodium salt. These are formed as a result of evaporation, especially in arid region. ठीक है, तो ये आपका कह रहा है कि हॉरिजेंटल जो स्ट्रेटा के अंदर मिलता है, जिसके अंदर उसने नमक का भी जिक्र किया है, और वो कहना ये चाहता है कि जब जब आपकी लेयर होती है ओशन वाटर की या फिर किसी लेक के वाटर की, जब एक लेयर होती है तो थ्रू द वेपोराइजेशन आपका जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है, और उसके बाद जो लेयर बच जाती है नीचे वो आपकी नमक की होती है. ठीक है, उसके बाद है अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituent, leaving a residual mass of weathered material containing ores. Bauxite is formed this way. ठीक है, आपका इरोजन हो रहा है, इरोजन होने के बाद टूट कर वो कोई चीज़ कहीं पे जाके डिपॉजिट हो रही है. ठीक है, रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, वेदरिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, चाहे फिर उसमें केमिकल वेदरिंग हो, आपकी फिजिकल वेदरिंग हो, या फिर आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग हो, थ्रू दिस वे. ओके, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स. आफ्टर दैट पहले उससे पहले ये कर लेते हैं, सर्टेन मिनरल्स में ऑकर्स इन एलुवियल डिपॉजिट्स. जो एलुवियल डिपॉजिट्स जिसकी हम बात करते हैं कि एलुवियल सोयल लगातार रिवर्स जो आपका डिपोजिशन करती रहती हैं वो आपका एलुवियल डिपोजिशन है. इट इज स्टैंड्स ऑफ वैली फ्लोर एंड द बेसिस ऑफ हिल्स. दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर. ठीक है, ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये कि प्लेसर क्या होता है, पूछा जा सकता है. तो प्लेसर क्या है, डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सोयल नियर द बेड ऑफ नियर द फुट ऑफ माउंटेन्स, और वी कैन से इन नॉर्दर्न रीजन स्पेशली जो आपका शिवालिक रेंज है इसके फुट, इनके पैरों के अंदर जो डिपोजिशन होता है वो आपका प्लेसर कहलाता है. एंड जनरली कंटेन्स मिनरल्स विच आर नॉट corroded by water. Gold, silver, tin and platinum are most important among such minerals. The ocean water contains vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffused to be of economic significance. However, common salt, magnesium and bromine are largely derived from the ocean water. These ocean beds too
आर रिच इन मैग्नीज नूडल्स। देखिए आपके ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, बट उनको निकालने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे मिनरल्स का आपका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और कॉमन जो है वो आपका है फ्रॉम मैग्नीशियम है, ठीक है, साल्ट है, ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे कॉमन सी निकाली जाती हैं। उसके बाद है रेड हॉल माइनिंग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रेड हॉल माइनिंग? अगर रेड होल माइनिंग की आप बात करूं तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशली की जाती है बेटा। और यहाँ पे जो कोयला है, ठीक है, वो इलीगल तरीके से एक बिल्कुल पतला सा छेद करके और इंटीरियर में जाते हुए वहाँ से जितना भी कोयला निकाला जाता है वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसके द्वारा, ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका रेड हॉल माइनिंग। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज़ इलीगल एंड रिकमेंडेड दैट दीज शुड बी स्टॉप्ड फोर्थ विद, ठीक है। तो ये यहाँ जो गवर्नमेंट है वो बहुत कोशिश करती है कि इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं उनको रोका जाए। ओके गाइज, थैंक यू। जब अगली वीडियो आएगी तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है रॉक्स का, स्पेशली सॉरी मिनरल्स का, उसके बारे में हम बात करें कि मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरह से आपके लिए यूज़फुल होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।